Good evening students. After unit test once again we are meeting in this online class, and now we will start our next chapter, that is algebraic expression. And you all have performed very well in this unit test, and I hope that you will do better than this, and definitely you are working hard because we are unable to contact face to face. If you are learning in these online classes, even then you are doing very well. So very good. Our next topic is algebraic expression, and algebra already you have learnt in lower class. So what is algebra? First of all, the definition of algebra is an combination of variables, numbers and some operations. So variables means the value which changes vary time to time. All the letters we use for this, A, B, C, D or any other letter we can use for this. Numbers means that is constant. All the numbers are constant. And operations means addition, subtraction. There are 4 operations which we have. So now see here, algebra, this is the combination of variable, constant and operation. And what is algebraic expression? These are the examples: 4x plus yp upon q. And in any expression where letters are also involved, that is algebraic expression. Now you see one algebraic expression, a plus b, and another is a plus b. So in class 7th you have learned how we will do this. A plus b and a plus b, their product. You recall the product of the binomial to binomial. This will be solved in this way. Class 7th in algebraic expression, this we have learned. A, this first letter A, and this will be multiplied with this, plus this letter B, and then this A here, and then this B here, and this plus sign is here. So by this way in class 7th you have learned. And when you will open the brackets, what you will get? A into A, here A multiplied by A, plus A multiplied by B, plus B multiplied by A, and then plus into plus, plus A multiplied by B. This expansion of this. Now A multiplied by A square, A into B, AB, B into A, AB, or I can do this AB also. B into A, I can write AB also. This I can write B into A, AB, and B into B, B square. And here these both are same, AB, AB. So what I can write? 2AB. So A square plus 2AB plus B square. So in this class now, A plus B into A plus B means the same. These two terms are there and multiplied by itself only. Means what will be the form of this expression? A plus B whole square. So A plus B whole square, what is their expansion? This came A square plus 2AB plus B square. So this is the expansion of this. So in future, now whenever such type expressions will be there, means A plus B is multiplied itself 2 times or power 2. Instead of doing this all, we will write only this much, means A square plus 2AB plus B square. Its example we will see in the question. So this is called identity, means this is like formula. So today I will teach you difference between formula and identity and equation. So this is called identity, and this is the first identity in your book. So this we have given identity number 1. So what is the identity? Now you see, a statement of equality which holds for all values of variable is called an identity. This is identity. This expression is called identity. A statement of equality. Equality is here, which holds for all values. Means you can put the value of A and B anything else. If you will put 2 plus 3, then also you will get the result. Here same answer you will get. This is true for 4 plus 9. This is true for 100 plus 200. Means for any value of these, this is true for, correct for all the values of A and B. So what is the equation? A statement of equality which holds for some values of the variable is called equation. In lower section you have learnt in class 6 and 7 equation also. So this identity word first time you are learning.
ऑलरेडी यू हैव लर्न एलजेब्रा पढ़ चुके हो, इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो आइडेंटिटी है दिस यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम। तो डिफरेंस जानना जरूरी है कि आइडेंटिटी क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन में क्या है, इन द इक्वेशन ये कुछ वैल्यू के लिए ही ट्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल यू सी यहाँ भी रहेगा, वेरिएबल है, लिटरल्स है, ऑपरेशंस है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। इन दिस एक्सप्रेशन यू सी इसमें भी वही है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इन इक्वेशन दिस इज द ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स। कैसे, हियर व्हाट वी कैन पुट ओनली 3, से 3 + 7 = 10। यहाँ if I am taking 10 then I will write here 40 only, if I write here 20 then I will write 30 only. So this here restriction is there, means this is true for some values of the variable, but here any values you put, value of a b should be anything, this will be true for every, means आप यहाँ कुछ भी वैल्यू रखोगे ए बी का, दोनों तरफ LHS और RHS बराबर आएगा। चाहे आप यहाँ वैल्यू ऑफ ए बी 100 रखो, 200 रखो, 1 2 3 कुछ भी रखो, इधर भी वैल्यू रख दो तो ये दोनों तरफ बराबर आएगा, यहाँ भी दोनों तरफ बराबर आएगा इक्वेशन में। लेकिन यहाँ एक्स का लिमिटेड वैल्यू के लिए, जैसे यहाँ ओनली 3 के लिए आ रहा है, यहाँ लिमिटेड वैल्यू एक्स का वैल्यू यदि आप 10 रखोगे तो यहाँ 40 ही आएगा, ये 20 रखोगे तो 30 ही आएगा। तो लिमिटेड वैल्यू के लिए है, यही डिफरेंस है बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। तो ये इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते, वी विल से दिस इज आइडेंटिटी। तो फार्मूला क्या हुआ, इसको फार्मूला बोल सकते हैं क्या? नो। फार्मूला का डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ साइन लेटर नंबर टू एक्सप्रेस अ गिवन लॉ इज कॉल्ड फार्मूला। इसमें लॉ आता है, ये कोई लॉ नहीं है, ये तो एक एक्सप्रेशन को बता रहा है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ए और बी का वैल्यू कुछ भी रखो दोनों तरफ बराबर आएगा। मतलब इसको वी कैन सॉल्व, इसके बदले एक क्लास 7th में जैसे सॉल्व किए हो, इसके बदले हम इसको शॉर्टकट में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर सॉल्विंग वी हैव गॉट दिस a² + 2ab + b²। तो अब ऐसे एक्सपांड सॉल्व नहीं करके इसको छोटे रूप में सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसका एक्सप्रेशन को कंप्रेस कर दिए, पता चल गया कि फाइनल ये एक्सप्रेशन आता है तो ये बन गया। लेकिन फार्मूला क्या होता है? फार्मूला तो कोई रूल को बताता है, कोई लॉ डिराइव होता है। जैसे SI = P × R × T/100, ये आपका फार्मूला है, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये आपको डिराइव किया गया है कैलकुलेशन के माध्यम से। ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 × साइड, 4 × साइड, ये क्या है? ये भी फार्मूला है, इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, डिराइव किए हैं, ये लॉ को बताता है, तो ये लॉ को नहीं बताता है। तो फार्मूला ये दिस इज द आइडेंटिटी, ये इक्वेशन हो गया, में फार्मूला हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस, दिस ऑल यू विल नोट डाउन ऑन योर फेयर कॉपी। ये पूरा आप नोट डाउन करना है। एलजेब्रा का डेफिनेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, फिर मैं एक एक्सप्रेशन को लेके बताया कि कैसे आइडेंटिटी आया है। तो ये आइडेंटिटी कुछ नहीं है, जो आप क्लास 7th में पढ़े थे एक्सपांड करना, उसी का ये छोटा रूप आ गया है। ये सबके लिए लेकिन नहीं रहता, सम पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए आइडेंटिटी पॉसिबल है। तो इस चैप्टर में वही आइडेंटिटी देखेंगे अलग अलग टाइप का। तो ये आज का है टुडेज आइडेंटिटी इज फर्स्ट आइडेंटिटी, इसको नाम दे दिए हैं फर्स्ट आइडेंटिटी। तो ये आपका आइडेंटिटी हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडेंटिटी वी विल सॉल्व वर्कशीट नंबर 1। हियर यू सी, ये वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर ये है 2x + 5 का होल स्क्वायर। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन सॉल्व दिस यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी 1 को अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो यू कंपेयर दिस क्वेश्चन विथ योर आइडेंटिटी, इसी आइडेंटिटी में आप कंपेयर करो a + b का होल स्क्वायर, इसको हर बार लिखना है। आपका राइट हैंड साइड में एक कर्ली ब्रैकेट बनाओ बड़ा सा, और ये आप आइडेंटिटी लिखो कि वी आर पुटिंग दिस इन आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी लिख दिए, और वैल्यू ऑफ a एंड b क्या है अब कंपेयर करो। a आपका ये जो एक्सप्रेशन है ना a + b का होल स्क्वायर, दिस यू कंपेयर विथ योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन में कंपेयर करो। देखो a क्या है 2x, b क्या है 5, तो आप इसका एक्सप्रेशन क्या होता है ये। तो अब इसको क्लास 7th के फार्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, फार्मूला सॉरी मतलब क्लास 7th के एक्सपांसन जैसे करते थे ना वैसे नहीं करेंगे। अब हमारे पास आइडेंटिटी आ गया है, क्योंकि इसका एक्सपांसन करने से तो ये मिला, तो वी विल अप्लाई डायरेक्ट, अब इसी फॉर्म में रखेंगे। तो इसी को मैं उठा के यहाँ लिख दिया हूँ, ये आइडेंटिटी हम लोग लगा रहे हैं। अब इसमें a का वैल्यू 2x है और b का वैल्यू 5 है, तो इसी को मैं फिर से
इस फॉर्म में लिख रहा हूँ ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 2ab में, इसी में कंपेयर करना है ना, 2ab 2, ए कितना है 2x, b कितना है 5 प्लस b स्क्वायर, हमारा b कितना है 5। तो आपको इसी में a और b का वैल्यू डाल के यहाँ पे x उसको सॉल्व करना है। तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x इंटू 2x, 2 टू ज़ा 4 और x इंटू x x स्क्वायर 4x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 इंटू x, और ये 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25। बस अब दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया है यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। और यू सी मोर क्वेश्चंस। Just a minute, you take, I am taking photograph of this so that I can send you. Now question number 1, one more question I am solving. Question number 1 of third one. Your question is 3 upon 5a plus 2 upon 3b का whole square. Again we will write the same thing by identity 1, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Here आपका ये क्या है, नाउ कंपेयर क्वेश्चन 3 upon 5 a, b क्या है, b है आपका 2 upon 3b. सो व्हाट विल बी हियर, इट विल बिकम, अब इसमें वैल्यू को डालो तो 3 upon 5a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब दिस इज 2ab, 2 इंटू ए कितना है, ए आपका यही है पहला वाला ए है 3 upon 5a इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, बी कितना है 2 upon 3b प्लस आपका बी स्क्वायर कितना है 2 upon 3 का 2 upon 3b का होल स्क्वायर. नाउ वी विल सॉल्व दिस. तो ये हो जाएगा 3 upon 5a स्क्वायर मीन्स 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25, a इंटू ए स्क्वायर प्लस हियर वी कैन कट इट, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, ओनली क्या बचा 2 बस बचा, 2 3 3 नो सॉरी दिस इज 3 upon 5 2 3 3 ओनली कैंसल, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ आपका दिस इज 5 और ए बी प्लस 2 upon 3 4, 3 3 ज़ा 9 और b स्क्वायर. So this is the answer of your question. So today's homework is question number 1. All parts you do, 2 I have solved, rest 4 you do. Question number 2 you see how to solve this. This is also easy. Question number 2 first one. 101 square. So what it will become? We have to write in this form a plus b form. तो इसको कर लेंगे 100 plus 1 का होल स्क्वायर. तो आप यहीं पे फिर आइडेंटिटी ऐसी लिख देंगे, दिस आइडेंटिटी a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. और आपका यहाँ a कितना है 100 और b कितना है 1, इसको एक्सपांड कर दो, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 100, b कितना है 1 और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा a 134 प्लस 200 प्लस 1 मीन्स वंस. सो व्हाट विल बी द सम, द सम विल बी 10201. This 1
0201. This will be the answer. Now one more question you see, third one. 8.1 का whole square written. So how we will write in two parts? We will write 8 plus 0.1. पहले आपको इसको स्प्लिट करना है, दो नंबर में स्प्लिट करना है, तो दिस इज बेटर, ऐसे करेंगे। फिर यहाँ वही सेम चीज़ लिखेंगे, आइडेंटिटी को लिख देंगे, a प्लस बी को होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a कितना है आपका 8, b कितना है 0.1। नाउ यू एक्सपांड इट a स्क्वायर, आपका आइडेंटिटी में a स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, a और b आपका 0.1, नो नीड टू पुट ब्रैकेट, 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ दिस इज 8 8 जा 64 एंड दिस 8 2 जा 16 इंटू दिस, 8 2 जा 16 प्लस इंटू दिस, इट विल बिकम 1.6 plus 0.1 into 0.1, 0.01. After that you solve this, that will be your answer. So your homework is worksheet 1, question number 1 and 2. Okay.